take out your textbook. Now in your textbook, okay, wait, I will also open the textbook with you all. Just a second. All of you can see the textbook now on the screen. Yes. Yes. Okay, beta. Now I just wanted to tell you na, bacha, ki this part of the lesson, because there may be a network issue over here. I'm not confirm about it. So this transmission of nerve impulses, I just wanted to show you the video, but maybe because of network issue, there can be a problem. So this particular topic now, I will be teaching you afterwards. Understood all of you? 9.5, the unit 9.5, I will be teaching you afterwards. Understood all of you? Yes. Yes. Out, okay, because I'm out, and maybe there can be a network issue and the video is also not playing over here. Therefore I will be starting with the 9.6 unit, and again I will be teaching you as soon as I reach to my home. I will be teaching you the 9.5 unit. Understood all of you? Chalo, now we will be starting the human nervous system. Okay, so again I will go back to that point. Now you can see this table now, all of you. Please today you have to help me a bit, bacha. You can see this table now. Human Yes. nervous. Acha, acha. Okay, thank you, beta. So human nervous system has 3 system in it. That is, you have been learning from your lower classes also. Central nervous system. Central nervous system क्यों बोलते हैं? जो body के center में present है. ठीक है? तो हमारे बॉडी के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है? सो दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? आजू बाजू में. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व बाहर आ रहा है, क्या बताया मैंने? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स बाहर आ रहा है और हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड है, दैट इज बीन कॉल्ड एज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? जो खुद से काम कर सकता है, खुद से हार्मोन सिक्रेट कर सकता है. But no doubt it will be having the control over the central nervous system. जैसे आपने आजकल बहुत कॉलेजेस में सुना होगा, जैसे आप लोग कल्याण में रहते हो तो आपने सुना होगा कि बिरला कॉलेज जो है वो ऑटोनोमस कॉलेज है. तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है बेटा? दे ऑल कैन डिसाइड व्हेन टू टेक द एग्जाम, when not to take the exam, but they are been connected to the university. Similarly, autonomous nervous system का मतलब क्या होगा? कि ये लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कब हार्मोन बनाना है, कब हार्मोन नहीं बनाना है, but no doubt they are been connected to our brain and the spinal cord. Understood all of you? So that is the meaning of autonomous nervous system. So central nervous system में we will be learning brain in detail. ठीक है? We will be learning different regions of the brain. We will be learning the external view, internal view, everything in detail. We will be learning the spinal cord and TS of spinal cord. ठीक है? Next, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स ब्रेन से बाहर निकलते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व. जो नर्व्स हमारे ब्रेन में से बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व. और ये क्रेनियल नर्व कहाँ पे स्प्रेडेड है? हमारे आईज में, हमारे माउथ में, अपने अपर जॉ में, लोअर जॉ में, नोज में, ये सारी इन जगहों पर स्प्रेडेड है. फिर वैसे ही जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकलेगा उसे हम कहेंगे स्पाइनल नर्व, जो हमारे हाथ में स्प्रेड होंगे, जो हमारे पैर में स्प्रेड हैं. अंडरस्टूड? ठीक है? ओके.
Now, autonomous nervous system has been working with two things. अभी देखो ये जो टर्म है ये आपने ऑलरेडी सर्कुलेशन लेसन में पढ़ा था. जब मैंने आपको हार्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था हार्ट इज बिन रेगुलेटेड बाय दिस टू सिस्टम. हाँ, ये वर्ड आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एम आई ऑडिबल ना बच्चा, ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कोई मुझे बता सकता है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? एनीवन? याद है किसी को? सर्कुलेशन लेसन में हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक, ये भूलो नहीं बेटा हर बार प्लीज. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीजेस एड्रेनालिन हार्मोन. एड्रेनालिन, ठीक है, विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ नॉर एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है उसे. ठीक है, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होगा कोई भी हार्मोन तो उससे एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है. और उसको ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए दूसरा सिस्टम है जो एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं. एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्क करते हैं. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एसिटाइल कोलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ तो एनर्जी का उसको वो कंजर्व करेगा. इसलिए एक एक्सपेंडिचर कराता है, सिंपैथेटिक एक्सपेंडिचर कराता है और पैरासिम्पैथेटिक कंजर्व कराता है. इसलिए दोनों भी एक दूसरे से क्या वर्क करते हैं? एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं. हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ना. ब्रेन में आपको तीनों रीजन्स पढ़ने हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. इसके अलग अलग नाम भी आपको याद रखना जरूरी है. फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड द रोम्बेनसेफेलॉन. ठीक है, तो आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, नोट डाउन कर लो इसको. आर यू राइटिंग और टेकिंग अ स्क्रीनशॉट? प्लीज लेट मी नो. Writing. Writing. ओके, राइट डाउन. सो फिर मैं इसके अंदर और भी पार्ट्स है वो मैं बता दूंगी आपको. हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो बेटा. सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व. हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं. तो आप इसके नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट में 12 पेयर्स. और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 33 पेयर्स होते हैं. 33 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं. तो आप इसके नीचे लिख सकते हो. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन का और दूसरा भी ऑल्टरनेटिव नाम भी है, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ तो आप वहां से लिख पाओगे. पहले आप इतना ही टेबल लिख लो. हो गया बेटा? Yes.
तो यू कैन सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इट इज, अवर ब्रेन एंड अवर स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है? क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम जो हमारा स्केलेटन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। तो हमारे बैकबोन के अंदर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। और हमारे क्रेनियम के अंदर कौन है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं? हमारा ब्रेन है। Now, let us learn the very important topic, that is a meninges. meninges, ठीक है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि हर एक ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होता है। जैसे हार्ट में आपने पढ़ा होगा पेरिकार्डियम, है ना। वैसे हर एक ऑर्गन, जैसे कि लिवर में होता है ग्लिसन्स कैप्सूल, जैसे किडनी में होता है रीनल कैप्सूल, वैसे ही हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो कवरिंग प्रेजेंट है, ऊपर का जो कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। सो ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन अ क्रेनियम ऑफ अ स्कल, है ना। हमारे क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन है। Inner to the bony covering, there are 3 protective membranes called as a meninges. Meninges क्या है? meninges is a covering of the brain and the spinal cord. अब ये meninges के भी 3 हिस्से हैं, meninges के भी 3 हिस्से हैं, ठीक है। They are dura mater, arachnoid matter and the pia matter. pia बोलो या पाए बोलो, that is your own pronunciation, ठीक है। So dura matter, arachnoid matter and the pia matter. What they are going to do? They are going to protect our brain and our spinal cord. So let us learn in detail about that. We are going to learn about the meninges. Yes, beta. मिस याला मराठीमध्ये ताडू म्हणतात का? नहीं, तालू इज डिफरेंट थिंग बेटा। तालू तो यहाँ पे जो गैप होता है, हड्डियों में जो गैप होता है, ठीक है। हमारा जो क्रेनियम है ना, आपने स्केलेटन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। हमारा जो ऊपर का जो क्रेनियम है ना, जो 1 मिनट है, हमारा जो ऊपर का क्रेनियम है, यस, ये अवर अबव क्रेनियम, ये जो सर है ना हमारा, इसके बीच में ना ऐसे जिगजैग लाइंस होते क्रेनियम की। कैन यू ऑल सी मी? देयर इज अ जिगजैग लाइंस प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। हमारे हड्डियों की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, मैं लेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे हड्डियों में तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप होने वाला रहता है, उनका ब्रेन डेवलप होने वाला है, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो जिगजैग लाइंस है ना, ये ऐसे ही रहते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये जिगजैग लाइंस ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ये जो गैप होता है ना यहाँ पे, दैट इज बीन कॉल्ड एज तालू। अंडरस्टूड? यस यस। तो तालू इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ, ये अलग है। ये बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके अंदर ब्रेन का कवरिंग है। जो तालू है वो हड्डी है, वो क्रेनियम का बात था, पर अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों भी मेनिंजेस से कवर है। मेनिंजेस के 3 लेयर है, ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। इट्स अ, जो भी कवरिंग होता है ऑर्गन को ना, इट इज ऑल अ कनेक्टिव टिश्यू। सो यहाँ पे 3 लेयर्स है कनेक्टिव टिश्यू के। ऊपर वाला ड्यूरा मैटर, देखो कैसे है ये लेयर्स, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाई मैटर। पर अब ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में भी स्पेस होता है, हाँ, ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में भी स्पेस होता है। तो क्योंकि ड्यूरा के नीचे है, एरेक्नॉइड के ऊपर है, तो मैं इसको एक, ये स्पेस को क्या नाम बोल सकती हूँ? आप समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बता रही हूँ? तो उसको आप क्या बोल सकते हो? सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस का मतलब जो ड्यूरा के नीचे है और एरेक्नॉइड के ऊपर है, हाँ, ऐसा सैंडविच समझो, ठीक है। तो बीच में जो स्पेस है दैट इज अ सब, मतलब ड्यूरा मैटर, सब ड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। अब वापस इमेजिन करो, अब एरेक्नॉइड के बाद पाया मैटर आएगा, तो एरेक्नॉइड और पाया के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है, तो उसको क्या नाम बोलोगे बताओ? सब एरेक्नॉइडल स्पेस। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या बताया? सो कैसे लेयर्स हो गए, देखो आप मेरे साथ इमेजिन करो। पहले ड्यूरा मैटर, फिर एक स्पेस है, उसे हम क्या कहेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। फिर आएगा एरेक्नॉइड मैटर, फिर एक लेयर एरेक्नॉइड मैटर का, फिर एरेक्नॉइड के नीचे फिर एक स्पेस है कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइडल स्पेस, और फिर आएगा पाया मैटर।
मतलब ये जो पाया मैटर है ना, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अवर ब्रेन एंड अवर स्पाइनल कॉर्ड। इतना समझ में आया सबको? Yes. Yes. ठीक है, वापस रिपीट करिए। ड्यूरा subdural space, arachnoid, subarachnoidal space, and pia mater. And the pia mater is been said to be the layer which is in direct contact with our brain and our spinal cord. ठीक है, so let us understand that in detail. तो हर एक लेयर का देखते हैं कि क्या क्या काम है। So dura mater, as I've told you पहले भी, मतलब कैसे है देखो, क्रेनियम, यह हड्डी हमारी क्रेनियम, क्रेनियम के नीचे क्या आएगा मुझे बताओ, क्रेनियम के नीचे कौन सा लेयर आएगा? क्रेनियम के नीचे कौन सा लेयर आएगा? इन तीनों में से कौन सा लेयर रहेगा क्रेनियम के नीचे? यस, क्रेनियम के नीचे कौन सा लेयर रहेगा बच्चा लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्रेनियम मतलब हमारा ब्रेन बॉक्स, हमारा ब्रेन बॉक्स, इस ब्रेन बॉक्स के नीचे क्या रहेगा? कौन सा लेयर रहेगा? Dura. ड्यूरा मैटर। यस, इट विल बी ड्यूरा मैटर ओनली ना, क्योंकि ये सबसे बाहर है, सबसे ऊपर है ना। तो ये हमारी हड्डी, ये सर वाली हड्डी, दैट इज क्रेनियम। उसके बाद जो लेयर शुरू होगा वो ड्यूरा। अब वापस ऐसे लिख लो आप ताकि आपको याद रहेगा। तो क्रेनियम, क्रेनियम के नीचे ड्यूरा, ड्यूरा के बाद सबड्यूरल स्पेस, फिर एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइडल स्पेस, पाया मैटर, एंड देन अवर आइदर अवर ब्रेन और अवर स्पाइनल कॉर्ड। अब समझा? पर अगर ये वर्टिब्रल, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो सबसे बाहर का लेयर क्या होगा फिर? वर्टिब्रल कॉलम, ड्यूरा मैटर। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? यस मैम। अंडरस्टूड? Yes. पर स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा अलग होता है, स्पाइनल कॉर्ड को अभी के लिए थोड़ा सा अलग छोड़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम के बाद ड्यूरा नहीं होता, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग है। पहले आप ब्रेन समझ लो, फिर मैं आपको उसको और डिटेल में बताती हूँ। सो हम ब्रेन की पहले बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन में मेरा आ गया क्रेनियम, क्रेनियम के बाद आया मेरा ड्यूरा मैटर। तो पहले हम ड्यूरा मैटर बता रहे कैसा है। तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर है, तो टफ है, नॉन वैस्कुलर है, मतलब विदाउट ब्लड वेसल्स है, थिक है, फाइब्रस मेनिंजस है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है ना, इसलिए इसको फाइब्रस बोल रहे हैं। मोस्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है। Okay, they are attached to the inner side of the cranium. Cranium के नीचे present है, and below it is a subdural space which is filled with a serous fluid. ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला? सबड्यूरल स्पेस। और इसमें क्या भरा है? इसमें एक फ्लूइड भरा है। इस फ्लूइड का नाम क्या है? सेरस फ्लूइड। क्या नाम है? सेरस फ्लूइड। कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू इन द बोर्ड एग्जाम। So please note down all of you, make a table, tabular form. Tabular form में लिखो तो आपको याद रहेगा जल्दी से। कैसे लिखोगे? Meninges at the center of your page. Write down meninges at the center of your page. ठीक है, उसको तीन ब्रांचिंग करो, तीन ब्रांचिंग करो। पहले लिखो ड्यूरा मैटर, बीच में लिखो एरेक्नॉइड मैटर, और फिर लिखो पाया मैटर। जहां पे ड्यूरा मैटर लिखा है वहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो आउटर मोस्ट लेयर, लिखो आउटर मोस्ट लेयर। उसके अंदर सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? टफ, कॉमा थिक, कॉमा नॉन वैस्कुलर, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टफ, कॉमा थिक, कॉमा नॉन वैस्कुलर, made up of fibrous connective tissue. Next point.
in dura mater it is attached to the inner layer of the cranium, inner side of the cranium. cranium मतलब brain box, मतलब जो हमारी हड्डी है, जो सर की हड्डी है. yes, that is cranium, brain box. next, below dura mater, देखो below dura mater there is subdural space. below dura mater there is subdural space filled with serous fluid. filled with serous fluid. done. Yes, ma'am. Okay, अब हम नेक्स्ट वाला लेयर समझते हैं, एरेक्नॉइड मैटर. हाँ, एरेक्नॉइड का मतलब क्या होता है? एरेक्नॉइड हम स्पाइडर्स को बोलते हैं, एरेक्निडास, है ना. एरेक्निडास का मतलब क्या होता है? स्पाइडर. तो जो एरेक्नॉइड, इसको नाम क्यों मिला है, एरेक्नॉइड वर्ड क्यों मिला है? क्योंकि ये जो लेयर है ना, वो स्पाइडर के वेब के जैसा दिखता है, मकड़ी के जाले के जैसा. ऐसा बहुत सारा नेटवर्क लेयर है. तो क्योंकि ये मकड़ी के जाले के जैसा ये वाला लेयर दिखता है, पूरा नेटवर्क के जैसा, इसके लिए इसको नाम मिला है एरेक्नॉइड मैटर. बीच का लेयर इज द एरेक्नॉइड मैटर, जो ड्यूरा सब ड्यूरल स्पेस के नीचे है. So it is a middle layer, it is thin, again it is non-vascular layer made up of connective tissue. ये सब connective tissue ही है बेटा. Because it is having a spider web like appearance, इसके लिए इसका नाम एरेक्नॉइड मैटर पड़ा है. अब एरेक्नॉइड के नीचे भी मैंने क्या बताया था? सब एरेक्नोइडल स्पेस, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज द CSF. CSF के बारे में भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पहले अभी इतना ही लिख के दो. CSF क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऐसा फ्लूइड जो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे CSF कह रहे हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कह रहे हैं. तो क्या क्या याद रखना है? देखो एरेक्नॉइड के बारे में आपको कि ये सब ड्यूरल स्पेस के नीचे है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मिडिल लेयर है, थिन लेयर है, वेब के जैसा अपीयरेंस है, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है. फिर आपको क्या बताना है? इसके नीचे भी एक स्पेस है, सब एरेक्नोइडल स्पेस, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट है, कॉल्ड एज अ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो राइट डाउन फॉर एरेक्नोइड मैटर, फर्स्ट पॉइंट मिडिल लेयर, comma thin, comma non-vascular, comma have web-like appearance. web-like appearance को अंडरलाइन करो, because that is an important point, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा है, web-like appearance. Next, below it is, you can copy this point, below it is a sub arachnoidal space को अंडरलाइन करो, and filled with the CSF को भी अंडरलाइन करो. CSF का फुल फॉर्म भी लिख लो. लिखा बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes. अब अंदर वाला है पाया मैटर. पाया मैटर दोनों को टच रहेगा, ब्रेन को भी टच रहेगा और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी टच रहेगा. ठीक है. सो इट इज द इनर मोस्ट लेयर, डेलिकेट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज हाईली वैस्कुलर, रिच इन ब्लड सप्लाई, बहुत ही ज्यादा ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अवर ब्रेन एंड अवर स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मैं एक ही लाइन में क्या बोल सकती हूँ? CNS बोल सकती हूँ. ठीक है. सो यू कैन कॉपी डाउन द सेम पॉइंट फॉर द पाया मैटर, वेरी इजी. इनर मोस्ट लेयर है, डेलिकेट है,
हाईली वैस्कुलर है मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई है, एंड इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज CNS. लिखा बेटा आपने? तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजें किसको लागू होती है? ब्रेन को लागू होती है, ठीक है? तो ब्रेन में देखो, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो आपको सब चीजें क्लियर है कि नहीं? जैसे मेरा ब्रेन है तो ऊपर मेरा क्रेनियम है, ठीक है? क्रेनियम, क्रेनियम के नीचे आएगा ड्यूरा मैटर, उसके नीचे आएगा सब ड्यूरल स्पेस जिसमें सेरस फ्लूइड भरा है, फिर आएगा एरेक्नोइड मैटर, उसके नीचे आएगा सब एरेक्नोइडल स्पेस जिसमें CSF भरा है, फिर आएगा पाया मैटर, और फिर है मेरा ब्रेन. अंडरस्टूड इतना? Yes, ma'am. Yes. अब मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात बता रही हूँ. हाँ, अब देखो, ये जो मेरा हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा, यहाँ पे कोई हलचल होता है क्या? ये मेरा हिस्सा हिल सकता है क्या? नहीं हिल सकता. बट अगर मैं अपनी बैकबोन की बात करूंगी, अगर मैं अपने स्पाइनल कॉर्ड की बात करूंगी, तो वहां पर होता है, वहां पे मूवमेंट होता है. मैं जब झुक रही हूँ, जब मैं टर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें हलचल हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब वर्टिब्रल कॉलम में ड्यूरा के ऊपर एक और प्रोटेक्शन की जरूरत है. समझ में आया? क्योंकि वहां पे रेगुलर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा नेक हिल रहा है सिर्फ. अंडरस्टूड? क्योंकि मेरा वर्टिब्रल कॉलम में जब झुक रही हूं तो इट इज मूविंग, है ना? सो इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यू कैन मेक अस राइट डाउन अ स्टार मार्क एंड राइट डाउन देयर. इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैसा होगा? वर्टिब्रल कॉलम, और उसके बाद आएगा एपीड्यूरल स्पेस. क्या आएगा? एपीड्यूरल स्पेस. एपीड्यूरल स्पेस मतलब वर्टिब्रल कॉलम मेरा, उसके बाद है एपीड्यूरल स्पेस. यू कैन, आर यू राइटिंग ना? एपीड्यूरल स्पेस. एपी क्यों मैंने बोला? क्योंकि ड्यूरा के ऊपर है, इसलिए मैंने उसको एपी वर्ड बोला. कोई भी चीज अगर कोई ऊपर रहेगा तो हम उसको एपी बोलते हैं, जैसे आप एपिडर्मिस बोलते हो, मतलब ऊपर का स्किन का लेयर. तो एपी का मतलब बायो में होता है ऊपर. सो ड्यूरा के ऊपर है, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया? एपीड्यूरल स्पेस, विच इज फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज अ फैट का टिश्यू, फिल्ड विद द एडिपोज टिश्यू. तो अब क्या हो गया? देखो, कुशन का काम हो गया. कुशन का काम, वर्टिब्रल कॉलम, एपिड्यूरल स्पेस जिसमें एडिपोज टिश्यू है, मतलब फैट का लेयर है, मतलब फ्रिक्शन होने का कोई चांसेस ही नहीं है. फिर आएगा ड्यूरा मैटर, फिर आएगा सब ड्यूरल स्पेस, फिर आएगा एरिक्नोइड मैटर, फिर आएगा सब एरिक्नोइडल स्पेस, फिर आएगा पाया मैटर, और फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. So please note down, in case of spinal cord, there is one more space present above the dura mater called as epidural space, which is filled with the adipose tissue. Adipose का मतलब होता है फैट का टिश्यू. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि CSF क्या है. अभी हमने पढ़ा ना CSF कहाँ है, मुझे बताओ. टेल मी, CSF कहाँ प्रेजेंट होता है? Subarachnoid Sub. space. शाबाश, वेरी गुड. सब एरिक्नोइडल स्पेस में प्रेजेंट है. तो ये कैसा फ्लूइड है? देखो, लिम्फ के जैसा. लिम्फ मतलब कलरलेस है, मतलब ब्लड, इसमें आरबीसी नहीं है, लिम्फ के जैसा है, कलरलेस है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर प्रेजेंट है, सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्रेजेंट इनर टू द सब एरिक्नोइडल स्पेस इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. अभी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन हम पढ़ेंगे आगे के हिस्से में. अभी के लिए लिख लो, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या है. जैसे हमारा हार्ट हॉलो ऑर्गन है, हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से जगह है, अंदर से स्पेस है.
इसको ऐसी कोई चीजों को हम क्या बोलेंगे, हॉलो। अभी इसको मैं क्या बोलूंगी, मैंने अगर मुट्ठी को बंद कर दिया तो मैं इसको क्या बोलूंगी, सॉलिड। पर अगर मैं कोई ऐसी चीज बताऊंगी मतलब हॉलो, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो हमारा Right. ब्रेन भी हॉलो है, मतलब हम सबके ब्रेन के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट है, और उस स्पेस को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। Understood? That spaces are been called as a ventricles. We will be learning that ventricles. तो जहां जहां पे भी मेरे ब्रेन में, हम सबकी ब्रेन में जो खाली स्पेस प्रेजेंट है ना, तो वहां पे वैक्यूम नहीं है, वहां पे सिर्फ ऐसी खाली नहीं है, वो सारी जगहों पे जहां पे भी हमारे ब्रेन में खाली स्पेस है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वहां सब जगह ये CSF भरा हुआ है। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारे ब्रेन की बात। तो ब्रेन में जो खाली स्पेस है उसे हमने वेंट्रिकल्स का, वहां पे CSF है। पर ये फ्लूइड तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये रॉड है ना, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप ऐसे कट करोगे ना बेटा, तो अंदर से आप देखोगे कि होल होता है बीच में। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे ये समझो कोई एक ट्यूब है, जैसे एक पाइप है, पाइप को आप ऐसे देखोगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, पर जब आप उसको ऐसे टर्न करके देखोगे तो आपको एक होल दिखेगा। तो वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है तो बड़ा ट्यूब, पर उसके अंदर एक होल प्रेजेंट है, एंड उसके होल को हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड में जो होल है ना, उसे कहा जाता है, वो पूरा है, पूरे अलोंग द लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल में भी CSF भरा हुआ है। तो हो गया ना, इसलिए इसका नाम हो गया CSF, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी है, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के भी स्पेस में। स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस को हमने क्या बोला, जो सेंटर में है कैनाल के जैसे, therefore called as central canal of the spinal cord. CSF को बनाता कौन है? So it is secreted by the pia mater. Choroid plexus क्या है? We will be learning in the further part of the lesson. Ependymal cells याद है आपको? Ependymal cells कौन है? याद है एपेंडाइमल सेल्स मैंने किधर पढ़ाया था आपको? यस और नो? Yes, ma'am. इधर बताओ 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 बताओ, पूछूंगी तो नहीं आएगा। Ma'am, types of neuroglial cells में है वो. शाबाश, वेरी Neuroglial गुड। cells. यस यस, वेरी गुड बेटा, न्यूरोग्लियल सेल्स का ये टाइप है। हाँ, एपेंडाइमल सेल्स। व्हाट इज कोरल प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क बायो में। ठीक है, तो वी विल बी लर्निंग, एक रीजन है हमारे ब्रेन में जहां पर पूरा नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। तो CSF कहाँ कहाँ बनता है? हमारा पाया मैटर बनाता है, कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है, एक पूरा नेटवर्क है वहां पे बनता है, और एपेंडाइमल सेल्स में बनता है। They are lining the ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord. Three openings in the roof of medulla oblongata help in draining out the CSF from brain to the outside. ठीक है, now इसका फंक्शन क्या है? तो मेनिंजेस एंड CSF दोनों भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करते। शॉक मतलब करंट वाला नहीं, जैसे अगर हम कभी सर के बल गिर गए तो हमारे ब्रेन को जल्दी वो डैमेज नहीं होने देगा। ठीक है, हमारा पहले तो सबसे पहले हमारा क्रेनियम सारा शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेगा। बहुत जोर से गिरे हैं तो मेनिंजेस काम करेगा, और उससे भी जोर से गिरे तो CSF सारा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। The meninges and CSF, they will act as a shock absorber and protect our brain and spinal cord from the mechanical injuries. It also maintains the constant pressure inside the cranium. It helps in the exchange of nutrients waste between the blood and the brain tissues. It also helps in the supply of oxygen to the brain. ब्रेन को डेसिकेशन से बचाता है, क्योंकि हॉलो स्पेस है ना ब्रेन में, तो ड्राइंग अप से बचाता है। डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइंग अप से बचाता है। It's an alkaline fluid, ठीक है, with a specific gravity. So total should be 100 to 120 cc of CSF is present in and around the CNS. Understood? So this can be asked in the board exam for a 2-mark question. Write down the function of CSF. So any of the 4 points you can write down. Any 4 important points you can note down. ये वाले पॉइंट्स इसके फंक्शन में नहीं आएगा। हाँ, ये जो सेकेंड लास्ट और लास्ट पॉइंट है ना, वो फंक्शन में नहीं आएगा,
सिर्फ डेसिकेशन तक जितने भी पॉइंट्स है वो उसके फंक्शन में आएंगे। तो आप लिख सकते हो, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट प्रेशर, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एक और पॉइंट लिखना है तो इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन, प्रिवेंट्स द डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाता है, ड्राइंग अप से बचाता है। Understood? This can be asked again as a 2-mark question in your board exam. Infection to the meninges is called as meningitis. मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर कोई ऑर्गन के आगे आईटीज वर्ड है मतलब उसका वो इन्फ्लेमेशन है। The meningitis, infection to the meninges is called as meningitis. ये इन्फेक्शन किसके वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया के वजह से भी, वायरस की वजह से भी। ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये वायरस हमारे मेनिंजेस को इफेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे ब्रेन कैन ऑल्सो बी डैमेज्ड। ठीक है, अंडरस्टूड? ये सब फंक्शन यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Okay. Now you can see the different view of our brain. ये वाला तो आपने देखा होगा, वॉलनट जैसा दिख रहा है पूरा, वॉलनट। देखो कुछ और मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि नहीं, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो नेचर ने बताए हैं बाय इट्स शेप इट इज गुड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे वॉलनट ब्रेन की तरह ही दिखता है, इट इज गुड फॉर योर ब्रेन। ठीक है, कैरेट को अगर आप कट करोगे तो अपने आईज के जैसा दिखता है, तो इट इज गुड फॉर योर आईज। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग लाइक दैट। फिग, फिग पता है सबको? फिग, Yes. फिग को कभी ओपन करके देखा है कैसा दिखता है? उसमें से छोटे 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 रहते हैं। हैव यू एवर सीन इट? देखा है कभी? इट इज Yes, गुड, ma'am. it is imitating the sperms, so it is very good for the sperm formation. Okay, there are many products, I will tell you as soon as. Mushroom is good for our ear. Mushroom को अगर आप आधा कट करोगे तो it will resemble your ear. It is good for your ears. Grapes resemble the grapes. Alveoli resemble the grapes, so it is good for the lungs. ठीक है, so like that. So you can see the different view of the brain. ये front view है, ये back view है brain का, ये side view है, left side view, right side view. ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा? ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्से को हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन, सी आई कांट डू द एनोटेशन ओवर हियर, तो यू कैन प्लीज अंडरस्टैंड ओवर हियर। आगे के हिस्से को हम फोर ब्रेन बोलेंगे, बीच के हिस्सा मतलब ये वाला बीच का हिस्सा नहीं, अंदर का बीच का हिस्सा, ये वाला अंदर का बीच के हिस्से को हम मिड ब्रेन बोलेंगे। प्लीज सी द कर्सर, ये पूरा जो है ये पूरा फोर ब्रेन में आता है। अंदर के साइड हमारा मिड ब्रेन है, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये वाला साइड, दिस इज द हाइंड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो अब मुझे देखो, आप मुझे देखो, तो ये पूरा हिस्सा फोर ब्रेन है। मेरे आंखों के अंदर जो भी हिस्सा है ना, आंखों के पीछे के साइड में जो भी हिस्सा है ब्रेन का, दैट इज अ मिड ब्रेन। और ये वाला जो है छोटा मेंदु जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। So what is the study of brain called as? It is called as encephalology. Encephalology. इसलिए हम बोलते हैं प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, क्योंकि एनसेफेलॉन का मतलब ही होता है ब्रेन। ठीक है, एनसेफेलॉन का मतलब ही है ब्रेन। So you can write down study of brain is called as encephalology. So ये तो आपने ऑलरेडी लिखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। Now, again, I want all of you to write down this in your notebook because this is very, very important. All of you, please note down this part in your notebook. For four brain, na, write down one more thing over here. एक और thing आपको लिखना है। Four brain में एक और आप note down करोगे point. You can be writing the here as four brain को आप तीन हिस्से में divide करोगे। इस स्क्रीन पे फोर ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना, पर आप तीन हिस्सों में डिवाइड करो ताकि आपको बाद में समझना आसान हो जाएगा। फोर ब्रेन का जो पहला वाला हिस्सा है ना, राइट एन ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब लिख लो उसको।
ऑल्फैक्टरी लोब, फिर उसके बाद ऐसे सब लिखो जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। यू कैन नोट डाउन, हो जाएगा तो बताओ।
Done. Done, beta? Yes. We are going. So we are going to learn each and every part of it nicely and properly. Okay? In this particular lesson. Now again, you can see the things again. You can take. You can just write down about this part also, beta. देखो, फोर ब्रेन में कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं, कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो, प्लीज नोट डाउन वेंट्रिकल्स. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर ब्रेन में कौन कौन से वेंट्रिकल है, मिड ब्रेन में कौन सा है वेंट्रिकल है, और हाइंड ब्रेन में कौन सा वेंट्रिकल है, और उसके सब डिविजन एंड उसका स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे ये वेंट्रिकल वाला हिस्सा बहुत जरूरी है, प्लीज इसको नोट डाउन करो. और वेंट्रिकल्स के ऊपर बोर्ड एग्जाम में पूछते ही पूछते क्वेश्चन, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें कैसे भी करके दिया गया है, इसीलिए. बोर्ड एग्जाम में वेंट्रिकल्स पूछते कहाँ पे कौन से वेंट्रिकल्स है, that I will be showing you with the help of our notebook. Wait, huh? We'll bring the notebook.
Done, ma'am. Done, beta? Okay. Now see this diagram, then the things will be much more clear. Wait, I will on the video. तो देखो समझो ये हमारा ब्रेन है, ये पेपर हमारा ब्रेन है, जस्ट एक मिनट। हाँ, ऐसा। तो अभी आप कैसे इमेजिन करोगे बेटे अपने ब्रेन को इस तरीके से, जैसे ये अभी ये वाला हिस्सा है, तो ये सामने का हिस्सा है हमारे ब्रेन का। यू कैन सी दिस पेपर ना, ऑल ऑफ यू। Yes. ओके, तो अब देखो ब्रेन में कैसे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। जब आप इसको ऊपर से देखोगे ब्रेन को, मतलब ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे ब्रेन को, तो आप देखोगे कि इसमें ऐसे हॉलो स्पेसेस प्रेजेंट है, लाइक दिस। इट इज, देयर इज अ डिप्रेशन लाइक दिस, हॉलो स्पेस प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। और ये हॉलो स्पेस ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और फिर ये ऐसे नीचे 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 तक स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। मतलब यहाँ से जो हॉलो स्पेस स्टार्ट होगा वो होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल में चला जाएगा। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, यही वाला डायग्राम है जो अभी मैंने आपको पेपर को फोल्ड करके दिखाया। देखो ऊपर ऐसा शेप आ रहा है ना, ऐसा वाला शेप आ रहा है, हार्ट शेप, समथिंग लाइक दिस, हार्ट शेप आ रहा है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो ऊपर रेड कलर का में हार्ट शेप आ रहा है। समझ में आया आपको ये डायग्राम क्या है अभी? तो ऐसे ये सीधे सीधे नीचे येलो कलर में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ऐसे स्पेस जो है वो ऐसे करते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक चला जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझा क्या बोला मैंने? Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके ओके। तो देखो पहला जो वेंट्रिकल है वो हमारे फोर ब्रेन में है। तो उसका आपने नाम क्या लिखा बताओ? उसका नाम है लैटरल वेंट्रिकल। क्या नाम है? लैटरल वेंट्रिकल, जो हमारे फोर ब्रेन में है, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी जो वेंट्रिकल है वो भी हमारे फोर ब्रेन का ही हिस्सा है, जो कि हमारे फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन रीजन में प्रेजेंट है। फोर ब्रेन का ही, अभी आपने देखो यहाँ पे लिखा था ना, फोर ब्रेन में डायनसेफेलॉन रीजन भी होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में ही दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है हमारे पास। एक जो ऊपर के हिस्से में है उसको हमने लैटरल वेंट्रिकल कहा, और एक जो डायनसेफेलॉन रीजन में आपको दिख रहा है बल्जिंग पार्ट, जो बल्जिंग पार्ट है ना पिंक कलर का, दैट इज अ वेंट्रिकल। ये जो बल्जिंग पार्ट है रेड कलर का, दैट इज अ वेंट्रिकल। समझ में आया? सो ये जो ऊपर वाला है इसका नाम है लैटरल वेंट्रिकल। देखो आपने लिखा था यहाँ से लैटरल वेंट्रिकल। देन जो हमारे डायनसेफेलॉन रीजन में है ये पिंक वाला, दैट इज अ थर्ड वेंट्रिकल। क्या नाम हो गया इसका? थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद आप नीचे नीचे और, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल हो गया। लैटरल वेंट्रिकल को फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल भी कहा जाता है। लैटरल वेंट्रिकल को फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल भी कहा जाता है। रोमन नंबर से हम लिखते हैं, रोमन नंबर से लिखते हैं, नॉर्मल 1 2 3 4 नहीं। रोमन नंबर 1 एंड रोमन नंबर 2 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, रोमन नंबर 3, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल। अब यहाँ पर सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है। इसके बाद आओ देखो, अब फोर्थ वेंट्रिकल कहां पर प्रेजेंट है? फोर्थ वेंट्रिकल जो है हमारा मिड ब्रेन में प्रेजेंट, सॉरी हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, इन समवेयर ओवर द मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन। अभी आपने लिखा था ना मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन, माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। तो ये रीजन में हमारा क्या प्रेजेंट है? मीटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन के बीच में हमारा फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो हमारे पास टोटल ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हो गए? टोटल ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जो कि हमारे सेरिब्रम रीजन में है, जिसको हमने लैटरल वेंट्रिकल भी बोला। उन दोनों को हम एक भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही बेटा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 ventricles are present in our brain. 4 ventricles हमारे ब्रेन में हैं। कौन से? जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में ये वाला जो हिस्सा है, हाँ, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो इस सेरिब्रम में दो जगह वेंट्रिकल्स है, एक इस साइड और एक इस साइड, इसीलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप उसे लैटरल वेंट्रिकल भी बोल सकते हो। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. सेरिब्रम में लैटरल वेंट्रिकल, सेरिब्रम में लैटरल वेंट्रिकल। सेरिब्रम किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो मतलब फोर ब्रेन का सेरिब्रम में फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ लैटरल वेंट्रिकल।
ठीक है, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन में नीचे हमें डायनसेफेलॉन रीजन दिखता है, डायनसेफेलॉन रीजन विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन रीजन में थर्ड वेंट्रिकल, फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन रीजन में थर्ड वेंट्रिकल। समझ में आ गया इतना? अब और नीचे चलते, तो ये हमारा छोटा मेंदु है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वहां पर जाकर हमें फिर से एक हॉलो स्पेस नजर आता है, और जो कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में नजर आता है, उसे हमने नाम दिया फोर्थ वेंट्रिकल। क्या नाम दिया? फोर्थ वेंट्रिकल। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपको समझना आसान हो जाएगा। फोर ब्रेन का सेरिब्रम में फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल को एक और नाम है, चाहिए तो अगर आपको लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। पैरासील भी बोलते हैं उसे, PARACOEL, पैरासील। सील मीन्स कैविटी है ना, इसीलिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। फोर ब्रेन का सेरिब्रम में फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल वेंट्रिकल। फिर और नीचे आओ, फिर आया डायनसेफेलॉन रीजन। तो फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन रीजन में थर्ड वेंट्रिकल। फिर और नीचे आओ, तो हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा में फोर्थ वेंट्रिकल। समझ में आ गया? फिर और नीचे आओ, फिर स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल केनाल में वापस स्पेस है, सेंट्रल केनाल इज अ स्पेस। तो हम ब्रेन में वेंट्रिकल कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में उसको केनाल कहेंगे, तो सेंट्रल केनाल हो गया। अंडरस्टूड? इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन आल्सो। अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर ब्रेन का सेरिब्रम में लैटरल वेंट्रिकल ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासील। सेकेंड पॉइंट, फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन रीजन में थर्ड वेंट्रिकल ऑल्सो कॉल्ड एज डायोसील। नेक्स्ट पॉइंट, हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा में फोर्थ वेंट्रिकल ऑल्सो कॉल्ड एज मेटासील और मायोसील। Understood? And again it will continue in the spinal cord. Again you can note one more point. This will continue in the spinal cord in the central canal. And all the ventricles are filled with the CSF. इतना सबको समझ में आ गया है? Then we will be learning more terms. समझा? Yes, ma'am. ओके ना, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, स्क्रीन पे नहीं है, बट आई विल टेल यू दैट। देखो, ये फर्स्ट वाला क्या है? लैटरल वेंट्रिकल है। ये क्या है? Yes. सेकेंड वेंट्रिकल है। सो फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल के बीच में एक नैरो स्पेस है, एक पतला सा स्पेस है, मतलब इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से कनेक्ट करने वाला एक पतला सा नैरो स्पेस है, जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द foramen of Monro. So how I can describe foramen of Monro? Lateral ventricle is connected to the third ventricle with the help of foramen of Monro. लिख लो, मेरे को मैं टेक्स्ट बुक से ही आपको दिखाती हूँ, ये वर्ड होगा शायद। All of you can see the text book ना now? Yes. टेक्स्ट बुक में ना सब बेटा एक साथ दिया है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। देखो ये वाले हिस्से में दिया है, बट है ना अलग से नहीं समझाया है, तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको सब बाउंसर जाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, फोरामेन ऑफ मोनरो का स्पेलिंग देख लो यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ पे है स्पेलिंग में, कर्सर मूव कर रही हूँ, आप स्पेलिंग देखो यहाँ से प्लीज। तो क्या बताओगे, व्हाट इज फोरामेन ऑफ मोनरो? Lateral ventricle connected to the third ventricle. Lateral ventricle connected to the third ventricle with a narrow space called as the foramen of Monro. ठीक है, वैसे ही
थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड भी तो फोर्थ से कनेक्टेड है ना, तो वो कनेक्शन के बीच का नाम क्या हो गया? इट इज कॉल्ड एज एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। यहाँ पे डक्ट ऑफ सिल्वियस दिया है, इसको हम एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या फिर इटर भी कहा जाता है, इटर। सो यू कैन राइट डाउन एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस और इटर। डन? Yes, ma'am. तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया बच्चा? अंडरस्टूड? सो जब आप ये वाला पार्ट पढ़ोगे ना, इतना वाला पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर का पार्ट अभी भूल जाओ, ये सब मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी, ठीक है? अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही हिस्सा पढ़ाया है। तो अगेन आई विल गो बैक टू दैट पेज, कहाँ गया? ओके, सो अब आपको समझ में आ रहा है। सो मैं अभी पूरा वेंट्रिकल्स आपको एक साथ बता रही हूँ, ठीक है? प्लीज अच्छे से समझ के लो, ठीक है? फोर ब्रेन के सेरिब्रम रीजन में लैटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पैरासील, ठीक है? नेक्स्ट, फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन रीजन में अगेन थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, कॉल्ड एज डायोसील। द लैटरल वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द third ventricle with the help of foramen of Monro. Next, the ventricle continues till the medulla oblongata, and the ventricle which is present in the medulla oblongata is called as the fourth ventricle or the metacarp. The connection between the third ventricle and the fourth ventricle is called as aqueduct of Sylvius. It can also be called as ether. Understood? Yes, ma'am. Yes. And it will be continuing in our spinal cord in the central canal. Central canal के spinal cord के बीच में जो space है उसे हम central canal कहते हैं, तो उसके अंदर ये continue होता है फिर। और इन सब जगहों में हमारा क्या present है? This thing is present. What? CSF. You can see this region. ऐसा अगर हम ब्रेन को कट करेंगे ना, तो ऐसा एक रीजन नजर आता है जहां पे आप एक्वेडक्ट देख सकते हो। ये सारे रीजन ऐसे कंटिन्यूएशन में होता है। तो देखो, फोर ब्रेन के अंदर ये सेरिब्रम है। अभी मैं पढ़ाऊंगी व्हाट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर आल्सो। ये सारी टर्म्स में भी आपको सब समझाने वाली हूँ, ठीक है? ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिला के हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला के हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। So these are the parts of the brain. You can take a screenshot. कोई बच्चे लोग बचपन में पढ़े हैं कि ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है। ऐसा नहीं है, ये गलती मत करो। ये पूरा फोर ब्रेन है। आंखों के पीछे वाला जो हिस्सा है अंदर मेरे ब्रेन का, दैट इज मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। सो प्लीज ये चीज को अपने दिमाग से क्लियर रखो। बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी को फोर ब्रेन में खत्म कर देते हैं। So forebrain, you can see that orange part, green part is the midbrain and the pink part is the hindbrain. So the picture should be very much clear to all of you. अच्छा, so forebrain can also be called as a prosencephalon. क्या बोलते हैं हम इसको? prosencephalon, ठीक है? prosencephalon में it is made up of the telencephalon and the diencephalon. वो वाले स्लाइड में ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में नहीं था, मैंने आपको कहा था लिखने के लिए। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो टीलेंसेफेलॉन उसके अंदर है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल लोब्स एंड द बेसल गैंग्लियास, ठीक है? तो पहले हम ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में ही समझते हैं, ठीक है? सो पहले हम फोर ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब को समझ रहे हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब जो है ना, वो हमारे इस टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है। देखो पहले आप इस चीज को अच्छे समझ लो कि हमारे ब्रेन ये ऊपर वाले के 4 हिस्से हैं। हाँ, प्लीज समझ के लो। सी माय वीडियो ऑल ऑफ यू।
ये जो अपना फोरहेड है ना, इसे हम कहेंगे फ्रंटल। हाँ, इसे हम कहेंगे फ्रंटल। ये जो कानों के ऊपर वाला जो दोनों रीजन है, इसे हम कहेंगे टेम्पोरल। टेम्पोरल। ये जो ऊपर है, हाँ, दैट इज द पराइटल। पराइटल। और आंखों के जस्ट पीछे, आंखों के जस्ट पीछे इज द ऑसिपिटल। समझा मेरी बात? सो फ्रंटल, टेम्पोरल, पराइटल, ऑसिपिटल। डन? इतना समझ में आ गया सबको? अब मैं क्या बता रही हूँ कि ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये हमारे टेम्पोरल रीजन में है, हमारे टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी लोब का में भी दो हिस्से हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। हाँ, ये स्क्रीन पे मत देखो, मेरी बातों को अच्छे से सुनो। ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर दो हिस्से हैं। ऊपर वाला जो गोल सा हिस्सा है उसका, उसे हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब, और एक ऐसे डंडे के जैसा रीजन है कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ऑल्फैक्टरी लोब के दो हिस्से हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है? ये जो डंडा जैसा है इसका ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, वो हमारे टेम्पोरल लोब के अंदर है। समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, अब ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना, ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी स्मॉल। हमारे केस में ऑल्फैक्टरी बल्ब बहुत ही छोटा है, उसका लोब बहुत ही छोटा है, इसके लिए हमारा सेंस ऑफ स्मेलिंग वीक है, वीक। जबकि डॉग में, शार्क में, हाँ, क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब काफी बड़ा होता है, उनका बल्ब काफी बड़ा होता है, इसके वजह से उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टूड? तो बस आपको इतना ही समझना है और पढ़ना है फॉर द ऑल्फैक्टरी लोब। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या पढ़ना है आपको। ऑल्फैक्टरी लोब, हाँ, is made up of olfactory bulb and olfactory tract. Olfactory tract is merging, is embedded, not merging, sorry, it is embedded in our temporal lobe. In case of human being, the olfactory bulb is very small, so our sense of smelling is very poor. Understood? समझ में आ गया सबको इतना? Yes, ma'am. Yes. Okay, you can see this part. So it is highly reduced. In case you can see the bulb, you can see the olfactory epithelium. Okay. So it is highly reduced in the human brain. It is covered by the cerebrum from all sides except the ventral side. Each lobe consists of a peduncle. Peduncle मतलब जो अभी इसको मैंने ट्रैक्ट बोला, ट्रैक्ट को ही पेडंकल भी कहा जाता है, जो उसका डंडी है। ठीक है, जो डंडी हमारे टेम्पोरल लोब में जा रही है, दैट ट्रैक्ट, और दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ पेडंकल. So it has a olfactory peduncle and an olfactory bulb. So therefore our sense of smelling is very poorly developed. You can write down olfactory bulb can olfactory tract can also be called as a peduncle. So please note down all of you. Write down olfactory lobe. Forebrain का first part हमने पढ़ा, that is olfactory lobe. olfactory lobe को दो हिस्सों में डिवाइड करो. एक साइड लिखो ऑल्फैक्टरी पेडंकल, या फिर आप उसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, और दूसरे साइड लिखोगे ऑल्फैक्टरी बल्ब. जहां पे आपने ऑल्फैक्टरी पेडंकल लिखा है या ट्रैक्ट लिखा है, उसके नीचे लिखो एम्बेडेड इन दी टेम्पोरल लोब. एम्बेडेड वर्ड नहीं याद रहेगा तो आप प्रेजेंट भी लिख सकते हो, प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब. और जहां पे आपने ऑल्फैक्टरी बल्ब लिखा है वहां पे लिखो स्मॉल इन ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट लाइन में आप बता सकते हो. सो sense of smell is poorly developed in humans. So sense of smell is poorly developed in humans. डॉग और शार्क में बड़ा होता है, इसलिए शार्क को डॉग फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उसको डॉग फिश भी कहा जाता है. ठीक है?
अब हम सेरिब्रम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जितना हो पाएगा उतना मैं आप नोट डाउन करते चलो, बाकी का हिस्सा मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो पहले आप है ना वो थियरी पार्ट देखने से अच्छा है ना पहले मुझे ही समझो। जितना आप पॉइंट लिख पा रहे हो यू कैन जस्ट राइट डाउन, अदरवाइज बाकी का वी कैन सी फ्रॉम द पीपीटी। ओके, अगेन कम बैक टू दिस पेपर वंस अगेन। सो ये वाला हिस्सा क्या है हमारा फोर ब्रेन का, ये वाला हिस्सा है जहां पे अपना मैं सर पे हाथ रखती हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। तो ये वाला हिस्से को मैं क्या बोल रही हूँ, सेरिब्रम। सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पॉइंट नंबर 1, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेकिंग अबाउट 85% टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। मतलब सबसे बड़ा रीजन है, मतलब यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, इसके लिए इट इज बीन कॉल्ड एज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पॉइंट नंबर 1, सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेरिब्रम को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये दो हिस्सों से बना है, ठीक है, ये दो हिस्सों से बना है, लाइक दिस। कैन यू अंडरस्टैंड ना? ये ऐसे हम देखेंगे तो इसे दो हिस्सों से बना है। तो जो आधा हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। समझ में आया? ठीक है। Yes. हमारा जो सेरिब्रम है ना ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो जो आधा हिस्सा है उसे हम कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, और दोनों से जुड़े हुए हैं, ऊपर से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये क्यों है, बिकॉज ये क्यों ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुए, बिकॉज ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल फिशर। फिशर मतलब डिप्रेशन। इन दोनों के बीच में पार्टीशन नहीं है, सेप्टम नहीं है, एक डिप्रेशन है। आप देख पा रहे हो ना, डिप्रेशन है, यहाँ पे डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन की वजह से ये दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। Not because of septum, it is because of a depression, which we can call as a fissure also, fissure. Understood? ठीक है। So मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, the cerebrum is been divided into two hemispheres, two cerebral hemisphere, and the division is because of this longitudinal fissure. Understood this point? Longitudinal fissure also, cerebral hemisphere also. Now both the cerebral hemisphere, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो होंगे ना, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं with the help of corpus callosum. Very important point. Both the hemisphere are being connected to each other with the help of a nerve band. nerve का band है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक nerve का band है जो दोनों हिस्सों को क्या करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। सो दोनों हिस्सों को कनेक्ट करने वाला कौन है, नर्व बैंड। उसका नाम क्या है, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम। तो कैन सी ऑन द स्क्रीन विद द येलो कलर मार्किंग, ये आधा हिस्सा दिखा है ब्रेन का, ऐसे एक और आधा हिस्सा होगा, तो इसलिए कॉर्पस कैलोजम आप देख पा रहे हो, ठीक है। यस, अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. नाउ कॉर्पस कैलोजम के भी तीन हिस्से ऐसे अलग अलग हिस्से हैं उसमें, ठीक है। तो यू कैन सी द कॉर्पस कैलोजम के अलग अलग हिस्से, दैट यू नीड नॉट स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बट इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये आपको इतना डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है। तो अब कॉर्पस कैलोजम के भी अलग अलग हिस्से देख पा रहे हो। तो ये वाला आगे का हिस्सा है, फ्रंटल वाला साइड है, आगे वाला साइड है, फ्रंटल साइड है। तो इसमें हमें जेन्यू दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, स्प्लीनियम दिख रहा है, ऊपर वाले हिस्से को हम इस्थमस कह रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरा ये कॉर्पस कैलोजम पूरा कनेक्ट कर रहा है पूरे हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, ठीक है। नाउ द आउटर रीजन, आउटर रीजन जैसे आपने किडनी में पढ़ा था, याद है आपको, किडनी में जब आपने आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोला था और अंदर वाले रीजन को मेडुला बोला था, वैसे ही सेरिब्रम का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम मेड्यूला बोलेंगे, ठीक है। So cerebral cortex is the outer region which is thin and it is made up of gray matter. Do you remember what is gray matter? मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइटोन प्रेजेंट है एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो साइटोन और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स को हम ग्रे मैटर कहते हैं। और जो अंदर वाला हिस्सा है सेरेब्रम का उसे हम कहेंगे मेड्यूला, which is white matter.
व्हाइट मैटर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन, और एक्सॉन है तो माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ है तभी तो वो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना। माइलिन शीथ है तो मतलब वो व्हाइट कलर का दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं? ऑल ऑफ यू Yes. अंडरस्टूड? Yes. ओके, तो वापस रिपीट कर रही हूँ। अगेन अ बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन, cerebral cortex is made up of dash matter, so the answer should be gray matter. Why gray matter? Because it has cytone and non-myelinated fibers. So दोनों भी आंसर्स आ गए इसके। Again, cerebral what is inner part of the cerebral called as? So it is called as cerebral medulla. Okay, what is the inner part of medulla, cerebrum called as cerebral medulla? What it is made up of? White matter. Why white matter? Because it is made up of axon and myelinated fibers. So देखो इतने ही पॉइंट में आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट हमारे सेरिब्रम में, जैसे आपने अभी ब्रेन का पहला वाला डायग्राम देखा था, ये पहला वाला सबसे पहला, तो आपने क्या देखा था बेटा यहाँ पे कि बहुत सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, और बहुत सारे छोटे छोटे डिप्रेशंस भी नजर आ रहे हैं ना। इस डायग्राम को देख के आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे ब्रेन में बहुत फोल्ड्स है और बहुत सारे छोटे 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 डिप्रेशंस भी प्रेजेंट हैं। तो जो फोल्ड्स होते हैं ना ब्रेन के, उसको हम कहते हैं गायराइज। फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? गायराइज। और फोल्ड्स को कॉन्वोल्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे आपने किडनी वाले लेसन में पढ़ा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, याद है, जिसको आपने पीसीटी बोला था। तो बायो में कहीं पे भी वर्ड अगर कॉन्वोल्यूटेड है, कॉन्वोल्यूटेड मींस कॉइल्ड, कॉइल्ड, ठीक है। यस, सो हमारे ब्रेन में ऐसे बहुत सारे कॉइल्स है, कॉन्वोल्यूशंस है, जिससे हम क्या कहते हैं? गायराइज। और ऐसे छोटे छोटे ग्रूव्स प्रेजेंट है, जिससे हम कहेंगे सल्काई। बड़े ग्रूव्स भी हैं पर छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं। तो छोटे छोटे जो ग्रूव्स है उसे हम क्या कहेंगे? सल्काई। और जो फोल्ड्स है, जो कॉन्वोल्यूशंस है, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? जो कॉइल्स है उसे हम कहेंगे गायराई। तो जितना ज्यादा गायराई होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने एक लंबी सी रस्सी ले ली, बहुत लंबी सी, ऐसे धागा ले लिया समझो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और धागे को आपने ऐसे लपेट के एक जगह रख दिया, तो उसका सरफेस एरिया तो ज्यादा है ना, आप उससे कितनी भी बड़ी चीजों को सिल सकते हो। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा आपको? आपने उसको Yes. कॉम्पैक्ट करके जगह, एकदम छोटे से जगह में कॉम्पैक्ट करके रख दिया है, बट है तो वो इतना बड़ा कि वो कितनी भी बड़ी पूरे कपड़े सिल सकता है, पूरा ड्रेस सिल सकता है, पर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, भले आपने उसको कॉम्पैक्ट करके रखा है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, उसमें इतने फोल्ड्स आ गए हैं, इतने फोल्ड्स आ गए हैं कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। सरफेस एरिया बनने की वजह से क्या होता है? पर्सन का इंटेलिजेंस पता चलता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा गायराइज होगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। अभी आप मुझे बोलोगे कि हर किसी का गायराई अलग अलग होता है, तो 19-20 का फर्क होता है, ठीक है, नॉट मोर। ऑल वी आर मेड फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सेम एवरीथिंग, सो ऑलमोस्ट वी आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ गायराइज, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच सरफेस एरिया यू यूज। जैसे आपने घर में एक रस्सी, एक थ्रेड लाकर रख दिया, पर उस थ्रेड से जब तक आप कोई चीज को सिलोगे नहीं, आप कपड़े बनाओगे नहीं, तो वो धागे का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, उस सरफेस एरिया का आप जितना इस्तेमाल करोगे आपका उतना ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ते जाएगा। तो द थिंग इज यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग, यू हैव टू यूज दैट, ठीक है। So greatly increases the total surface area for accommodation of the vast number of nerve cell. It was been आइंस्टाइन के ब्रेन को जब स्टडी किया गया तो उसके ब्रेन में पता चला कि उसका गायराइज काफी ज्यादा है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा उसके पास गायराइज थे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉर्टेक्स रीजन, यू कैन सी द medulla region, you can see the sulci, you can see the gyri, you can see the longitudinal fissures, you can see the gray matter, you can see the white matter. See properly each and every labelings of the diagram, हर एक labeling को आप अच्छी तरह से देखें।
Understood all the points? Any doubt till here? No, ma'am. Okay, so time is also less now. We will just revise all the parts what we have learned today. So we have learned the central nervous system का फोर ब्रेन का सिर्फ एक ही हिस्सा हमने पढ़ा, दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब, जो पूरी तरह से पढ़ा, सेरिब्रम पूरी तरह से हुआ ही नहीं अभी तक पढ़ के अपना, ठीक है। सो उसके पहले हमने मेनिंजस पढ़ा, ठीक है। मेनिंजस इज द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो इन केस ऑफ ब्रेन इट विल बी our cranium, then dura mater, then subdural space filled with serous fluid, then arachnoid matter. Next is below that is subarachnoidal space filled with the CSF, then the pia mater, which is in direct contact with the brain. When we talk about the spinal cord, then then how it is: vertebral column, epidural space, which is made up of adipose tissue, then the dura mater, then the same thing. ठीक है, subdural space with serous fluid, arachnoid matter, subarachnoidal with CSF, then pia matter with spinal cord. ठीक है, then we have seen all these parts in detail. We have seen about the functions of CSF also. CSF is very, very important fluid. It also protect us from the foreign bodies. सिर्फ न्यूट्रिएंट का काम ही नहीं करता है, प्रेशर ही मेंटेन नहीं करता है, ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है, क्योंकि लिम्फ के जैसा फ्लूइड है ना। तो लिम्फ का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो लिम्फ का काम क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो ये भी क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज की जैसे मैंने आपको बताया मेनिंजिस के बारे में, मेनिंजाइटिस के बारे में, इन्फेक्शन टू द ब्रेन इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस। तो अगर हमारा सीएसएफ एक्टिव है, हमारा सीएसएफ एक्टिव है, तो जल्दी कोई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। पर अगर हमारा सीएसएफ थोड़ा भी इधर उधर हो गया, तो तुरंत बैक्टीरिया या वायरस हमारे मेनिंजिस को इफेक्ट करेंगे और धीरे धीरे ब्रेन को डैमेज करने लगेंगे, एंड उस बीमारी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, एंड वी हैव सीन ऑल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. दिस इज अ फ्रंट व्यू, बैक व्यू एंड बोथ साइड व्यूज. Study of brain was called as the encephalology. Then we have seen the different parts. We have noted all these things. Then we have learned the ventricles in detail. Okay, all the ventricles we have seen. Then I have explained you the olfactory lobe. In case of human being, it is not so well developed. And then cerebrum, I've just started with the cerebrum. I've introduced the terms like the cerebral hemisphere, longitudinal fissure, corpus callosum, and cerebral cortex, cerebral medulla, gyri and sulca. इतने ही terms मैंने आपको introduce किए. So आपका काम क्या है बेटा? इस लेसन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप इसका पहले का रिवाइज नहीं करते रहोगे, आपका आगे का आपको कुछ नहीं समझेगा, सब ब्लैंक होते जाएगा. तो जितना आज मैंने पढ़ाया ना बेटा, आप प्लीज उसको रीड करो टेक्स्ट बुक में. समझ में आया बेटा? कि ताकि है ना आपको समझ में आना जल्दी समझ में आ जाए. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो रीड करके रखोगे कि नहीं इतना सब पॉइंट्स? Yes. ठीक है. So now it's time to say goodbye to all of you. So it's a bye-bye time. Bye, बच्चा.